السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جب مرد روتے ہیں کا چوتھا ایپیسوڈ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ امید کے مکمل سن کر ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ چوتھا ایپیسوڈ میں گریہوزاری کے تعلق سے نماز کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے۔ جو بھی مسلمان اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کا دل ہمیشہ مسجد اور نماز سے اٹکا ہوا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں اور ان میں غور و فکر کر کے اطمینان قلب حاصل کرتے ہیں، اور اس سے خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے۔ بندے میں ایسی خاکساری آ جاتی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ جو دل ملاوٹ سے پاک ہو اور سطحی دل فریبیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے تو وہ مسجدوں سے وابستہ ہو جاتا ہے اور ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ایک فرض کے ادا کرنے کے بعد دوسرے فرض کا انتظار کرتے رہتا ہے۔ اور ان 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے انعام کا مستحق قرار دیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے میں سایہ دے گا۔ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ وہ 7 لوگ ہوں گے جس کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر انصاف پسند حکمراں، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں کو اللہ کی عبادت میں گزاری، اور وہ شخص جب وہ مسجد جائے تو جب تک واپس پھر مسجد نہ آ جائے اس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا رہتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے ہی آپس میں ملتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، اور وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ شخص، اور آخری نمبر پر وہ شخص ہے جسے حسین و جمیل اور جاہ و منصب والی عورت نے اسے دعوت گناہ دے لیکن وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو یہ گویا کہ اس آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سنت پر عمل کیا۔ اور وہ شخص جو صدقہ ایسے آخری نمبر معذرت کے ساتھ، وہ شخص جو صدقہ ادا کرے کہ اس طریقے سے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو جب دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہو۔ تو اس میں دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ جو آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، گریہوزاری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اور اس کا دل جب مسجد میں اٹکا رہتا ہے اور نماز میں اٹکا رہتا ہے تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سنائی ہے۔ چنانچہ اگر ایسا شخص جو نماز میں مسجد میں نہیں پہنچ پاتا تو آپ اسے افسوس زدہ اور غمگین پائیں گے، اور اس کے احساسات گرم آنسو بن کر بہنے لگیں گے، جیسا کہ سعید بن عبدالعزیز کی مثال ہے کہ اگر ان کی نماز فوت ہو گئی تو رونے لگے، بلکہ جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوتے تھے تب بھی روتے تھے، اور اس قیام کی عظمت کا سوچ کر اور جن آیات کی تلاوت کرتے یا سنتے اور ان میں غور و فکر کرتے ہوئے جس سے دل میں ہلچل پیدا ہو جاتی اور وہ آنکھوں کے راستے سے پانی بن کر بہہ جاتی تھی۔ اسحاق ابن ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ سعید بن عبدالعزیز نماز کے دوران چٹائی پر آنسو گرنے کی آواز تک سنی جاتی تھی، ان کے آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو بہتے تھے۔ تو گویا کہ یہ انہی کے تعلق سے جو لوگ نماز میں گریہوزاری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں۔ ابو صالح سمان مؤذن تھے، ایک بار امام صاحب کے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے امامت کرانے لگے۔ دوران نماز گریہوزاری کی یہ کیفیت تھی کہ نماز پوری کرنا بھی مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ گویا وہ نماز میں اس قدر رو رہے تھے، اس قدر آنسو بہا رہے تھے کہ ان کے لیے نماز مکمل کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک مسلمان اللہ کی عظمت کی وجہ سے نماز کو عظیم سمجھتا ہے تو اس جگہ کھڑے ہونے کے ہیبت کے باوجود تکرار کے اس کے دل میں رہتی ہے۔ منصور ابن زادان کے پڑوسی ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے منصور کو ایک دن دیکھا، انہوں نے وضو کیا، جب فارغ ہوئے تو ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ میں نے پوچھا اللہ آپ پر رحم کرے کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کس کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ سنگین ہوگا؟
मैं उस ज़ात के सामने खड़े होने जा रहा हूँ जिसे ना नींद आती है और ना ऊँग आती है। अबू सईद कहते हैं, अल्लाह की कसम, उन्होंने इस बात से मुझे भी रुला दिया। अब यहाँ पर हम सहाबा किराम का भी शान देखते हैं कि वो बड़ी निराली थी उनके शान। अब्दुल्लाह इब्न शुखैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे और आपके सीने से हांडी के पकने की तरह आवाज आ रही थी, यानी आप रो रहे थे। कितना ज्यादा उनका रोना था कि उनके सीने की आवाज तक सुनाई दे रही थी, किस कदर उनके अंदर गिरिया गुजारी थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सदी में, जो कि सुलह और नेकूकारों की सदी है, और अल्लाह की तरबियत करदा कुरानी नस्ल की जिंदगी के तमाम अमाल, एहसासात और हर कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिस इत्तिबा में ही उनकी असल उसवा थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने जब से होश संभाला, वालिदैन को इस्लाम पर पाया, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम हमारे घर न आते हों। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जहन में आया कि उन्होंने अपने घर में की सहन में एक जाय नमाज बना ली, जहां वो नमाज पढ़ते, कुरानी आयतों की तिलावत करते थे, जिसे कुरैश के बच्चे और औरतें खड़े होकर सुनते थे और पसंद करते थे और उसका असर कबूल करते थे। अबू बकर जज्बाती आदमी थे। जब वो कुरान पढ़ते थे तो अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। इस बात ने मुशरिकीन कुरैश को परेशान कर दिया। कितना ज्यादा वो आंसू बहाते थे कि उनके रोने की वजह से, उनके आंसू बहाने की वजह से मुशरिकीन कुरैश भी परेशान हो गए। ये बात काबिल गौर है और हम लोगों के लिए भी काबिल अमल है ये बात कि हम लोग भी सहाबा कराम के उसी तर्ज ज़िंदगी को अपनाएं और उसी के तरीके से नमाज को भी अदा करें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से नमाज में रोते थे और जिस तरह उनकी आवाज़ें सुनाई देती थी, उस तरह हमारे दिलों में भी भी आवाज़ें हैं, आँखों से आंसू जारी हों और हम गमगीन भी हों, ताकि अल्लाह ताला को हमारे ऊपर रहम आए। उबैद बिन उमैर कहते हैं कि उमर इब्न खत्ताब ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई और सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी। जब आयत उनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफ़ेद हो चुकी थी और वो गम को दबाते हुए आयत नंबर 84 पर पहुंचे तो रोते रोते आगे न बढ़ सके और रुकू कर दिया। तिलावत कर रहे थे, नमाज पढ़ते हुए क़िराअत कर रहे थे और इतना ज़्यादा रोए कि वो उससे आगे तिलावत नहीं कर सके और रुकू कर दिया और नमाज इस तरह से आगे बढ़ाई। दूसरी रिवायत में है कि जब वो उस आयत पर पहुंचे, इन्नमा अश्कु बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह, तो अपनी परेशानियों और रंजो गम की फरियाद अल्लाह ताला, इसका तर्जुमा यह है कि मैं अपनी परेशानी और रंजो गम की फरियाद अल्लाह ताला से कर रहा हूँ। तो इतना रोए कि आपकी हिचकियों की आवाज़ पीछे तक के सफ़ों तक पहुँच गई। इमाम और उनके पीछे के लोगों तक जो है उसकी आवाज़ पहुँच गई। क्या अभी भी हमारे अंदर कोई ऐसे इमाम हैं या कोई ऐसे लोग हैं या हम हैं कि हमारे आंसू कभी टपकते भी हैं? आवाज़ आना तो दूर की बात, रोना तो दूर की बात, रोने जैसी शक्ल भी हमारी नहीं हो पाती है नमाज में। तो गोया कि हमारे अंदर खुशू व खुजू की कितनी ज़्यादा कमी है और नमाज में गिरफ्तारी के ताल्लुक़ से जो अल्लाह ताला को पसंद है उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा मोहताजगी है। इसीलिए सहाबा के दौर और उनके बाद के दौर में अगर नमाज में मामूली सा भी फ़र्क आ जाता और हालात को बदलता देख सहाबा के दिल में बड़ा गिरा गुजरता था। वो सोचते थे कि लतीफ़ जज्बात और डरने वाले दिल जो नमाज में लज्जत महसूस करते थे, किसी ऐसी चीज़ का शिकार हो गए जिसने उन्हें उनकी मारूफ फितरत से हटा दिया। चुनांचे ज़हरी रिवायत करते हैं कि मैं दिमश्क में अनस बिन मालिक के पास दाखिल हुआ तो वो रो रहे थे। मैंने पूछा कि आप किस वजह से रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने सीखा है इसमें सिर्फ यही नमाज मैं जानता हूँ और वो भी मुझसे ज़ाय हो रही है। यानी जब नमाज बाजमात जब उनकी कज़ा हो जाया करती थी, छूट जाती थी, तो वो रोते थे और इस हद तक वो कहते थे कि हमने तो बस नमाज ही सीखा है और वो भी हमसे कज़ा हो रही तो मेरे पास रह क्या जाएगी। गोया कि मुसलमानों के पास नमाज एक बहुत बड़ा सरमाया है और अल्लाह ताला से बात करने का ज़रिया है। अब हम यहाँ पर जो है नमाज के चंद अहवाल जो चंद सतूर में हैं उसको ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह।
फिर ये हमारा चौथा एपिसोड जो है मुकम्मल होने वाला है। नमाज के कुछ अहवाल इस तरीके से हैं कि यूनुस बिन अब्दुल्लाह का मुहासबा नफ्स और कोताहियों को पता लगाने का अलग ही अंदाज था। जब वो एक छोटी और एक बड़ी चीज़ की अहमियत का मुवाजना करते थे तो मुझे कहते थे कि मुझे क्या हो गया है कि मैं मुर्गी के गायब हो जाने पर तो उसे तलाश करता हूँ, लेकिन नमाज के फौत हो जाने पर उसकी फिक्र नहीं करता। एक मामूली सी चीज़ जो मुर्गी है वो जब गुम हो जाती है तो इंसान परेशान हो जाता है। मामूली चीज़ इंसान जब खो देता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन जब नमाज जो एक बड़ा सरमाया है, अगर वो नमाज फौत हो जाती है तो इंसान को कोई फिक्र नहीं रहती। शायद यही वो नुमाया पैगाम है और जिसमें आदमी को हिम्मत और इस्तिक़लाल की ज़रूरत होती है। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को उभारे कि वो आपस में नसीहत करें, चीज़ों की अहमियत के बारे में उसे तरजीहात बताएं और नुकसानात में उसको तमीज़ कर सकें। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ वो एहसास और जिंदा दिल लोग ही जान पाते हैं जिन्हें बाजमात नमाज की क़द्र क़ीमत, अज़मत व मंज़िलत का पता होता है। जैसा कि आयशा की 70 साल तक कभी भी तकबीर तहरीमा नहीं छूटी थी, और इब्ने समाह कहते हैं कि 40 साल के अरसे में मुझसे तकबीर तहरीमा नहीं छूटी, सिर्फ उस दिन क़ज़ा हुई जिस दिन मेरी वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ। काजी शाम सुलेमान बिन हमजा मुक़द्दसी कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में फ़र्ज नमाज सिर्फ 2 बार अकेले पढ़ी और उनमें भी लगता है कि पढ़ी ही नहीं, हालांकि उस वक्त उनकी उम्र 90 बरस के करीब थी। अल्लाहु अकबर। 90 साल की उम्र में भी वो जो है बाजमात नमाज अदा करते थे और मस्जिद में हाजिर होते थे। हमारे असलाफ अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, अगर जमात से नमाज अदा न कर पाते तो उन पर रंज व गम तारी रहता था। हातिम असम कहते हैं कि मेरी एक दिन जमात क़ज़ा हो गई तो अकेले अबू इसहाक बुखारी ने ताज़ियत की, अगर मेरा बेटा फौत हो जाता तो कई हज़ार लोग ताज़ियत करते, क्योंकि लोगों के नज़दीक दीन की मुसीबत दुनिया के मुसीबत के मुकाबले में मामूली है। जब किसी औलाद के फौत हो जाने पर इंसान कई लोग उनके पास आते हैं ताज़ियत करने के लिए, या कोई भी किसी तरह के मसाइल अगर ज़िंदगी में आ जाए तो लोग आते हैं, उनकी ताज़ियत करते हैं। लेकिन जब दीनी कोई अरकान और फ़राइज़ छूट जाए, इंसान के हज फ़र्ज होने के बाद वो हज अदा न कर सके तो उसके साथ नहीं ताज़ियत की जाती है। इसी तरीके से रोज़ा फ़र्ज होने के बावजूद, ज़कात फ़र्ज होने के बावजूद, या दिगर जो अखलाक़ी फ़राइज़ हैं वो फ़र्ज होने के बावजूद अगर कोई आदमी उसको अदा नहीं करता है तो उसके साथ कोई ताज़ियत नहीं करता है। हालांकि ये खसारा जो है दुनिया के खसारे से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। किसी औलाद के चले जाने से, माल के चले जाने से, कारोबार के, नौकरी के चले जाने से कई गुना बड़ा खसारा ये है कि इंसान की एक वक्त की नमाज जमात से छूट जाए या नमाज क़ज़ा ही हो जाए। अल्लाह ताला हम सबों को गिरफ्तारी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, जमात के साथ वक्त के एहतमाम के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आपके हमारा साथ इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद के आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे और इस वीडियो को जो है दीगर लोगों तक भी पहुंचाएं, इसमें ताकि हमारा भी हौसला अफजाई हो और जो है लोग भी इससे इस्तेफादा कर सके और आपके लिए भी सदका जारिया हो। वस्सलाम।